फर्स्टली वेलकम ऑन आवर चैनल फीफा फूड। हम शुरुआत करते हैं डायरेक्ट सचिन से, CID 2 से। व्हाट टू से अबाउट इट? It's a lovely feeling that yes, CID is back, and of course, fans की डिमांड से शुरू हुआ है और of course, everybody wanted it back, so we are back, and it's a lovely feeling that I'm also into. डेफिनेटली फैंस का क्रेज तो नेक्स्ट लेवल था, जी. बट इस बार जो चीज़ अलग हुई है वो है ऑन OTT। इस Yes. बारे में क्या कुछ कहना है? Yeah, that's another thing. Yes, because वैसे तो सोनी पे आता ही है, सोनी लिव पे भी था, and अब OTT पे भी आ गया, Netflix पे, we are there on that. So it's a great feeling because यहाँ की ऑडियंस तो हमारी देखती थी इतने सालों से और शो को हिट बनाया है। So ऐसी उम्मीद करते हैं कि we become much better and better and better day by day, and we are rocking there. नाउ वी आर सीइंग OTT वर्सेस टेलीविजन, तो क्या यही सीन यहाँ पे रिक्रिएट हो गया है CID के लिए? Definitely, पूरी दुनिया इस समय आई थिंक OTT is happening everywhere. So this was a good step I feel, and अच्छी स्टोरीज आए और अच्छे प्रोग्राम्स इस तरह से बनते रहे तो it'll be great for अपने एक्टर्स, एंड जैसे कि और भी कुछ शोज अभी एक के बाद एक आ रहे हैं तो इट्स अ लवली फीलिंग. Also want to know your journey with CID. How was it? I didn't get you. Your journey with CID. Yeah, it's been quite some time. I mean, started with Special Bureau, with same production house, same channel. So we were there doing that, and I was playing Black Cat Commando Abhimanyu, that character, as a cop. And I did many other shows outside, but I was called for CID and by Mr. BP Singh. And BP sir ने बोला कि would love to do that. I said yes, of course, why not? Since I've been part of that also special, and I would love to be back in CID. And that's how I started CID. And I remember उनके कुछ शब्द याद आते हैं कि he said कि CID is such a show कि आप ये कैरेक्टर करोगे and it will be a household name, it will be everywhere. तो सर मैंने भी सुना, बोला हाँ, because I had done many other shows like in a lead, in a parallel lead, and a lot of सास बहू and romantic shows. मुझे भी लगा हाँ एक और show अभी like you entered in the show होता ही है. But actually I remember his words, and this time when I was joining again back, first thing I called him again and I'm like, first I speak to him and then I start. Because I just believe that no matter what, कितने भी shows आपने किए हों, फिल्में की हों, लेकिन CID is one thing that all over India and everywhere, wherever you travel and go, people know you by name, people know you, they give you so much of love and affection. So I definitely feel कि we owe this to our audience. डेफिनेटली CID तो आइकॉनिक है, बट मैं आपसे, जैसे आपने ही कह दिया कि सास बहू शोज डिफरेंट होते हैं, CID इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। तो जानना चाहूँगी CID का जो फॉर्मेट है फॉर दिस, हाउ इज़ द शूटिंग एक्सपीरियंस? ये कितना डिफिकल्ट होता है टू अटेम्प्ट समथिंग न्यू? Definitely, CID was not like any other show because जैसे रोमांटिक शोज हैं, जो सास बहू जो शोज हैं, उसमें हम लोग पहले काम कर चुके, पता ही है, एक ही जगह हम लोग शॉट्स ले सकते हैं, आप टर्न हुए, थोड़ा सा चीट करके वहीं पे लुक कर लिया, एक ही कमरे में हो सकता है, हॉल में हो गया, जल्दी जल्दी शूट हो सकता है. बट CID इज लाइक वी कीप चेंजिंग लोकेशंस, different locations every time, different places every time. As an actor also it's very exciting because आप continuously अपने टोज पे रहते हो. आपने घोड़े देखे होंगे, घोड़े कभी बैठते नहीं है, तो हम लोग CID के वो घोड़े हैं कि हम लोग भी बैठते नहीं करते. हमेशा आप देखेंगे कि हम कोई ऐसा सीन हमारा नहीं होता जो हम बैठ के कर रहे हो, हमेशा खड़े रहते हैं. तो आप इमेजिन करो कि 14-12 घंटे या जो भी हम लोग जितने घंटे काम करते हैं, 12 घंटे, and travel or whatever it is, we are always on our toes. So that's another thing which keeps everybody going, and also different location, which is always exciting. Different actors you're shooting, different locations, you don't get bored and never get bored of that. कोई CID की मेमोरीज जो यू वुड लाइक टू शेयर विद अस? एक मेमोरी तो मैं बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि CID is a family and it's been so long, we've been working together, and शायद आप लोगों को पता हो कि कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हमने CID बीच में बंद किया था. 6 साल के बाद भी साथ में काम कर रहे हैं. The day we started shooting together, ऐसा लगा ही नहीं कि कल हम लोग का ऑफ था या 2 दिन पहले ऑफ था. ऐसा लगा कि कल शूट कर रहे थे, आज फिर वापस सेट पे. Because we were connected, we were always talking to each other, meeting outside, having dinners and going out. It's become a family. So obviously it's a
ever thing, you know, it's long lasting thing, touch wood, it's like being a family. तो कभी ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि you know कुछ अलग है और you know फिर से वापस एक साथ में and lovely feeling. वैसे तो यू सेड के इतने जो गैप था वो गैप पता ही नहीं चला क्योंकि यू वर इनटू अ कनेक्ट। लेकिन एक चीज़ और जो कनेक्ट रखती है वो होती है ऑडियंस, और स्पेशली हम सोशल मीडिया पे देखते हैं किस तरीके की वो एडिट्स करते हैं। इन सारी चीज़ पे कैसे वी हैव ऑल्सो सीन जो लव स्टोरी वाले एडिट्स है सोशल मीडिया पे, व्हाट यू वांट टू से ऑन इट? नहीं, डेफिनेटली मैंने पहले भी बोला कि वी ओwe दिस टू आवर ऑडियंस बिकॉज इतनी प्यार मोहब्बत हमने कितने, जैसे मैंने या उन लोगों ने भी, बहुत लोगों ने अलग अलग तरीके के शो किए, फिल्में की हैं, लेकिन जाने जाते हो आप सीआईडी से, क्योंकि ये जो प्यार ऑल ओवर इंडिया मिला है ये ऑडियंस का प्यार है और वो दिल से आपको जब चाहते हैं तो कई आपकी कमियां भी होती हैं जो वो नज़रअंदाज कर दी जाती हैं बिकॉज प्यार इतना होता है एंड दैट इज़ अ काइंड ऑफ लव एंड अफेक्शन वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम ऑल ओवर। एंड ये भी मैं मानता हूँ कि जिस तरह का शो है आप अपने परिवार में किसी के साथ बैठ के देख रहे हैं, फैमिली में, चाहे वो आपके एल्डरली हों कोई या यंगस्टर्स हैं या किडोज, लाइक ना एनीबडी, you can sit together and watch the show because there's nothing gruesome, nothing vulgar. It's been the case, and I think that is what it, you know, keeps you going with the family and so well connected. बस सीआईडी ने तो कम बैक की है ही अपना नेटफ्लिक्स पे भी, बट यू नो एक और चीज़ जो काफ़ी सीआईडी के साथ चल रही है वो है सीआईडी एनिमेशन भी। जी, उस पे क्या करना है, आप लोगों का क्या रिएक्शन था व्हेन यू नो कि ओके नाउ इट विल कम इन एनिमेशन फॉर्म आल्सो? yeah, I mean actually this was there in the news, मतलब काफी समय से बातें आ रही थी कि ऐसा बनने वाला है, ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, and हुआ तो obviously पता लगा, so it's a wonderful feeling. I mean एक legacy है और एक इतने सालों के कितने रिकॉर्ड्स हैं, तो अगर ये चीज़ें बनती हैं it's lovely and definitely सारे कैरेक्टर्स इंक्लूड होते हैं एक के बाद एक, you know, so it will be a lovely feeling that you know all the characters are also included and you know it's happening. अपार्ट सीआईडी क्या कुछ प्रोजेक्ट्स है आपके? सीआईडी के अलावा आप क्या कर पाओगे लाइफ में जब कर रहे हैं सीआईडी, बिकॉज सीआईडी इज शूटिंग ऑलमोस्ट यू नो ऑलमोस्ट एवरी डे, और उसके बाद ऑफ कोर्स यू हैव योर लाइफ एंड थिंग्स गोज ऑन, तो डेफिनेटली उसके पहले के प्रोजेक्ट्स आपको पता ही है कि यू नो कीप वर्किंग एंड ऑल दैट, एंड आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो आई डोंट लाइक टू सिट आइडल लाइक दैट, आई लव टू कीप वर्किंग, एंड जब तक है तब तक कोशिश यही रहेगी कि हमेशा काम करते रहें। अच्छा, सीआईडी की भी मैं बात करूँ, यू नो पहले तो हमने टेलीविज़न पे देखा, अब जब ओटीटी में देखा, दोनों में वाइल शूटिंग भी क्या कुछ डिफरेंशिएट्स थे? नहीं, देखिए प्रोडक्ट जो बन रहा है वो तो वही है, और डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें मैं उनकी तरफ से तो नहीं बोल पाऊंगा बिकॉज ऑब्वियसली इंटरनली व्हाट एजेंडा व्हाट प्लान्स दे हैव वी डोंट नो। एज एन एक्टर डेफिनेटली वी नीड टू बी मोर यू नो लाइक much better now because it's coming on Netflix, then everybody's working together for better things, yes, of course, and there has to be because so many things are coming up and competition is there, so we need to take care of those things. That's what I personally believe. Baki to definitely they must be working in in this. टॉकिंग अबाउट स्टोरी, या हम एपिसोड्स में क्या कुछ देख सकते हैं, क्या कुछ न्यू होने वाला है ये बात? This is what I'm saying. Personal, definitely as an actor, what we can do and you know, look-wise and things like that, we work on. And absolutely, there are teams that we have, and now more team or whatever, you know, they're working on a creative side to become better or to do better things for sure. But definitely, I'll say keep watching, and you'll see much better or more better things now coming up for sure. Okay. Lastly, anything to the audience? डेफिनेटली जैसा प्यार आपका मिला है हमेशा वैसा ही देते रहिए, एंड आई नो इट्स अ सेल्फलेस लव बिकॉज यू नो यू गाइस हैव बीन देयर। डेफिनेटली आज हम जो कुछ भी हैं, जहाँ पे भी हैं, जिस भी मुकाम पे हैं, दर्शकों की वजह से हैं, सो मैं उनको डेफिनेटली कहना चाहूँगा कीप शावरिंग योर लव एंड वॉचिंग आवर शो कंटिन्यूअसली। वेल वैसे तो आपने कह दिया कि सबके साथ फैमिली बन गई, लाइक काफ़ी वक्त से चल रही है ये सीआईडी का सिलसिला, तो ये फैमिली बन गया, लेकिन स्टिल व्हाट टू से फॉर दया, फॉर अभिजीत, किस तरीके का बॉन्ड है? मैंने बोला अभी बोलने का मतलब जब फैमिली हो जाती है तो बोलने का होता नहीं है, लाइक जो एल्डरली है, जैसे एक फादर फिगर है, साडम साहब हैं, तो वी शेयर दैट रिलेशन, जहाँ पे थोड़ा ये भी होता है, और हर जगह फैमिली में होता ही है कि बड़ा भाई है तो उस हिसाब से you're respectful also, you're friendly also, we hang out together, we eat together. मतलब इंडस्ट्री में शायद ही कहीं और ऐसा होता है, बट हमारे सीआईडी में we like a family, we sit together, we sleep together, not the same bed
different ways of sleep, but we sleep together, we are always together. So we eat together. So you can imagine how we live in the same vanity. लंबी वैनिटी होती है, सारी ओपन होती है, कोई दरवाजे बंद नहीं होते, यहाँ दरवाजे टूटते भी नहीं, कोई दरवाजे को लात मार के अंदर नहीं आता, दरवाजे खुले आपके लिए. So everybody is, you know, all together. So that's a wonderful feeling. And कभी ऐसा लगा नहीं, you know, वैसे बहुत सारी जगह टेलीविजन पे स्टार्स काम करते हैं, यहाँ हम लोग एक्टर्स काम करते हैं, and it's a beautiful feeling. Everybody is grounded, everybody is like, you know, family to each other. तो मैं आपसे जानना चाहूँगी सेट पे लाइक फूडी कौन है? Oh my God, मतलब जो फूडी नहीं है वो CID सेट पे वो भी फूडी हो जाएगा. Everybody is. Saurabh sir also, Shwari also, Daya also, Abhijit also, I am also. कोशिश होती है कि और अपना अजय भी, सब तो हर आदमी फूडी है. बस यही है कि समय समय के साथ थोड़ा कोशिश करते हैं कि थोड़ा फिर वापस पीछे डाइट एंड just फिटनेस. keep holding yourself. Otherwise तो everybody is foodie. खाने के नाम पे तो मतलब you know, हमेशा हम रहते हैं. देन हु इज इन मोर इनटू फिटनेस? वो तो आपको देख के पता लगेगा. But yeah, anyway, we all are actually. थोड़ा बहुत होता ही है. अभी after certain age, everybody has a different agenda. Like you know, कुछ लोग walk कर लेते हैं, कुछ डाइट पे कंट्रोल कर लेते हैं, कुछ योगा कर लेते हैं. मैं शुरू से था, you know, like योगा भी करता हूँ, मैं walk कर लेता हूँ, and you know, I try gymming also a little bit in between. And other people also do the same actually. You know, कहीं ना कहीं फिटनेस को तो ध्यान रखना ही पड़ता है. सेट पे सेलफोन एडिक्टेड कौन था? सेल फोन हमारे यहाँ इतना मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ मतलब बीच में जब गैप होते हैं तो हर आदमी कुछ समय से मैंने अवॉइड करना शुरू किया. पहले आई यूज्ड टू आल्सो टेक एंड स्क्रॉल एंड बट पिछले कुछ 2-3 महीनों से मैंने एक हैबिट फॉर्म की है कि मैं अपना मोबाइल साइड में रख देता हूँ. कई बार तो ऐसा होता है कि पूरे दिन मेरे पास मोबाइल नहीं है एंड आई डोंट फील के इट्स नीडेड. फ़ोन आते रात को मैं देख लेता हूँ किसका फ़ोन आया है, कॉल बैक, बहुत ज़रूरी होगा तो नेक्स्ट डे कर सकता हूँ, या यू नो. So it's not too much to this now. I try and avoid it. I felt really good because कुछ 15-20 दिन पहले I had a trip where I didn't use the mobile at all. So it was a beautiful feeling. No tension, absolutely free, relaxed. So कोशिश है. आर यू प्लानिंग टू गो इनटू बिग बॉस बिकॉज नो सेलफोन तो हम वहीं देख सकते हैं? No, nothing. There is no such plans. Yes, but हाँ, I mean, क्या होता है वो मैं I never say no. अगर सिचुएशन ऐसी आती है कभी ऐसा तो आई डोंट नाउ फील दैट. अर्लियर आई यूज्ड टू बी लाइक लिटिल ब्लॉक्ड इन थिंग्स कि ये करना या ये नहीं करना. आई डोंट से नो. व्हाटएवर कम्स माय वे एंड एक्साइटिंग एट दैट मोमेंट, ऑलवेज देयर. बट कोई है ऐसा भी सेट पे जो जो बोलते हैं ना बिना सेलफोन के रह ही नहीं सकते? ऐसा मैं नहीं कहूँगा क्योंकि हम लोग सब अपना फोन साइड में रखते हैं बिकॉज हमारा जॉब भी वैसे ही पूरे टाइम अगर सीन में है तो ऑब्वियसली नहीं उठा रहे फोन. उसके बाद डेफिनेटली हर आदमी अपने अपने इंटरेस्ट हैं. कोई ऐसी कुछ स्क्रॉल कर रहा है या फिर कोई न्यूज़ वगैरह कुछ यू नो. सो ये कीप डूइंग दैट. सो एवरीबॉडी लिटिल बिट तो आजकल यूज्ड टू सभी हो गए हैं. एनी गॉसिपर ऑन सेट? हु इज नॉट, बट इट्स ओके. आई मीन यू नो हर चलता ही रहता है. और आजकल एक सेट की बात नहीं, मैं पूरी हर जगह की बात करूँ कि कोई किसी को नहीं छोड़ता. जब तक आप साथ में हैं तब तक है, बाहर गए तो आप भी गॉसिप का पार्ट. वी वांट अ नेम एटलीस्ट, किसी No एक में तो names. किसी का नाम आए. No names. मैं तो पहुंचूंगा मैं ये इंटरव्यू देके और मैं obviously I think everybody does that little bit. होता ही है, लड़का हो या लड़की हो, गॉसिप कौन नहीं करता आजकल. Okay. Lastly, anything to your fans? Thank you audience of FIFA Foods. Keep watching us. Don't forget. And yes, this is Rishikesh Pandey once again. And अपने ऑडियंस को यही कहना चाहूँगा, चाहने वालों को कि इतने सालों आपने हमें झेला है, ऐसे ही झेलते रहिए पूरे जीवन. एंड इसी तरीके से प्यार मोहब्बत देते रहिए. इट्स अ वंडरफुल फीलिंग दैट यस यू गाइस आर देयर एंड दैट्स हाउ वी आर देयर. थैंक यू सो मच. Thank you.